Hi students, welcome to our science lectures. Manan sirs, standard 10 subject science 1, gravitation. Let's learn the remaining parts of gravitation today. So all of you pay attention. Till now, अभी तक किसी ने लास्ट के लेक्चर अटेंड नहीं किया होगा तो अपने एसीसी ऐप पे वहाँ पे जाके आप अटेंड करना बिकॉज ग्रेविटेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ईयर्स बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है लेकिन मैंने यहाँ पे विद यूजिंग माय टेक्नोलॉजी आई कन्वर्ट इन इनटू सिंपल मेथड्स बहुत से एग्जांपल आपको सिंपल मेथड से मैंने सॉल्व करके दिखाया है जो आपको टेक्स्ट बुक या डाइजेस्ट कोई भी नोट्स हो वहाँ पे आपको ये मेथड मिलेगा नहीं so please attend this lecture watch this and then continue to this video okay now till start to the next lecture. In last lecture we learned the Kepler's three laws, first law, second law and the third law, right? On the basis of these laws conclusions are there. What conclusions are there? First one is sum of the length of the sum arms are always constant, means sun is at the one of the foci and any point is on the ellipse, then distance of this point from this foci is the same. Suppose A is a point on the ellipse, they AF1 and plus AF2, another point is a B is there, distance is a BF1 and what is a plus BF2, sum of these two BF1 plus BF2 and AF1 plus AF2 is what is equal. That's we learn, right? Always constant. The speed of the object in an elliptical orbit is not a constant. In circular orbits, speed is a constant. But Kepler says that speed of the object is a elliptical orbit is not a constant. यहाँ पे speed constant नहीं होगा यानी जो equal areas covering equal interval of time यहाँ पे distance कम करेगा लेकिन distance जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे speed क्या होगा, ज़्यादा होगा और डिस्टेंस जहाँ पे कम कवर किया वहाँ पे स्पीड क्या होगा, कम होगा. मीन्स उसकी जो उसका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ द फोसाई टू टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, मीन्स सपोज सन टू द प्लैनेट, ये जो डिस्टेंस है ये इंक्रीज हो गया तो यहाँ पे स्पीड क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है. नेक्स्ट लेक्चर भी कंटिन्यू यार, ये लास्ट टॉपिक लास्ट लेक्चर का पार्ट था. यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर अभी स्टार्ट होगा. जो कंक्लूजन का पार्ट अभी मैं आपको एक्सप्लेन किया, जो पहले भी किया था. अब देखो Kepler stated three laws and by using three laws Newton take the advantage and he stated his own laws. और न्यूटन को यहाँ पे क्या मिला, उसका जो बेनिफिट था इसके, यानी जो साइंटिस्ट केपलर ने जो प्रूव किया था उस मेथड का अप्लाई करके न्यूटन ने उसको एडवांस लॉज में कन्वर्ट कर दिया और उसको बेनिफिट हो गया अपने लॉज को यूनिवर्सल लॉ बनाने में. So Newton's universal law of gravitation universal हो गया because इसका benefits, इसका जो thanks to the Kepler's because he used the ideas with using by using the ideas of the Kepler's, Newton got the more benefit here. So Newton should be thanked to the Kepler here. Okay, Newton's law क्या बोल रहा था वहाँ पे, F force of attraction between the two bodies is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them. अभी तक सबको ये बायड हुआ होगा, राइट नो? बहुत से जितने भी लेक्चर हो गए वहां पे हमने ये लॉ का स्टेटमेंट जरूर बोला है. तो अभी तक जिसको भी बायड नहीं है यहाँ पे पॉज करो, फिर से बायड करो लॉज, फिर यहाँ पे आ जाओ. Now F is a proportion to 1 upon r square. Force is a directly proportional to 1 upon r square. देखो G m and what is the m1, ये पूरा हम कांस्टेंट रखेंगे तो f is inversely proportional to square of the distance आने वाला है. How we got this? Let's learn. Kepler. Now magnitude of centripetal force means the force of attraction which is directed towards the mean position. What is the force is directed towards the mean position
एंड इसका मैग्नीट्यूड क्या है, सेंटीमीटर फोर्स इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर. व्हाट इज एम वी स्क्वायर अपॉन आर. You know, force is equal to mass into acceleration. What is the force is equal to mass into acceleration. That's why force is equal to mass into acceleration means what, v square upon is r. For user, v square upon r. Here is a m is the mass of the earth and v is the tangential velocity. Then and r is the distance of it from the center between distance between the two bodies are there. Pay attention here. Then yeah, force is directed towards the mean position. This force is called as the centripetal force. Force is what is directed towards the mean position. And F is equal to mv square upon r. Where m is the mass of the planets, v is the tangential velocity, r is the distance of it. Then formula for the centripetal force is equal to, centripetal force means force which is directed towards the mean position. दो टाइप के फोर्स होते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. इफ यू आर द ट्रैवलिंग बाय द बाइक or by the bus, when they turn their curve road, that time bus is taking the turn on the right side, then your body is bent towards the outside. That force is nothing but, this force is a centrifugal force. This force is called pseudo force, यानी कि ये फोर्स रियल में होता नहीं है, इसको क्या किया, इमेजिन किया गया है, जो क्या करता है बॉडी को आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या करता है, इसको पुल करता है, और जो बॉडी को इनवर्ड डायरेक्शन में पुल करता है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स. और कौन, सेंट्रीपिटल फोर्स, फोर्स विच डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल या सेंटर ऑफ द बॉडी. You know, v is equal to distance upon time. You know, each body, suppose earth complete one rounds, this time is called as the period. That is the period of the earth is what is the t. T is equal to 365 days and what is the 6 hours. And then r is the radius of the circle, and your circumference of circle is equal to 2 pi r. क्या फॉर्मूला है, what is the formula for the circumference, 2 pi r. यानी circumference मतलब यहाँ से जो earth, this our earth is there revolving here, this earth is revolving in this direction and complete one round. What it complete what is a run one round and came and reach at the mean position. It cover the distance. This distance मतलब क्या हो गया, ये क्या हो गया, पूरा उसने क्या किया, circumference complete किया. circumference का फॉर्मूला क्या है, you know 8th standard और 7th standard में पढ़ा होगा. circumference area of circle, circumference is equal to 2 pi r. क्या है, 2 pi r means earth cover distance, that distance is equal to 2 pi r. And time is equal to time taken by earth to complete one round is called as the period of the time. Period of revolution. Period of revolution of the earth 365 days 6 hours. That's why there is a, after 4 years there is a leap year, means leap year contain 366 days. Okay. नाउ पीरियड के लिए हमें यहाँ पे क्या लेना है, टी, और इसका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना लेना है आपको, 2 पाई आर. 2 पाई आर क्यों समझ में आया, यानी v इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस क्या होगा, देखो यहाँ पे अर्थ ने कंप्लीट किया, यहाँ पे डिस्टेंस वो कितना आ गया, सर्कमफ्रेंस. सर्कमफ्रेंस मतलब क्या हो गया, 2 पाई आर. और टाइम इज पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, t इज इक्वल टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, दैट आइडिया t हियर, मी v इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन t. Got it? सबको समझ में आया यहाँ पे. लेट्स गो अहेड. नाउ f इज इक्वल टू, अभी ये v वैल्यू जो है यहाँ पे, दिस वैल्यू वी हैव टू पुट इन दिस वैल्यू ऑफ द 2 पाई आर अपॉन t वी हैव टू पुट हियर. यहाँ पे आपको ये वैल्यू पुट करना है. लेट्स पुट हियर m into v स्क्वायर मींस 2 पाई आर अपॉन t ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन r. अभी ये जो पूरा है ब्रैकेट स्क्वायर सॉल्व करना है, 2 स्क्वायर कितना होगा 4,
पाई स्क्वायर इज अ पाई स्क्वायर, आर स्क्वायर इज अ आर स्क्वायर, टी स्क्वायर इज अ टी स्क्वायर। ओके, हो गया ये, समझा सबको, पक्का? ओके, now r and this r square is a cancel, remaining only what? Now f is equal to m written here 4 pi square r upon what is a t square. किसी को फास्ट या स्लो ऐसा कुछ दिख रहा है तो आपको वहां पे वीडियो में ऑप्शन होगा कि आप YouTube पे देख रहे थे, यूट्यूब पे वहां पे ऑप्शन है नॉर्मल स्पीड, हाई स्पीड, लो स्पीड, ये कर सकते हो वहां पे। क्लियरिटी में भी आपके वहां पे ऑप्शन है, आपको क्लियरिटी चाहिए तो क्लियरिटी भी आप वहां पे चेंज कर सकते हो। सो आपका नेटवर्क अच्छा होना चाहिए तो आपको ये अच्छे से दिखेगा। सो all of you adjust there and watch it, don't forget to use the earphone. Next, f is equal to 4 pi square r upon t square. Now multiply to numerator and denominator by r square, that is f is equal to 4 pi m 4 pi square r upon t square multiplied by r square here to both numerator and denominator. You will get m 4 pi r cube upon r square into t square, right? Now t square upon r cube is equal to what is a constant, right? Now Kepler's law, Kepler's third law, square of the period of the revolution is directly proportional to cube of the average distance of the object from the center, from the sun. That's called the Kepler's third law. According to third law, t square upon r cube is equal to k. This is or r cube upon t square भी लिख सकते हो यहाँ पे, r cube upon t square लिखो या t square upon r cube लिखो, that's will be okay. It's a constant 1 upon k. Now r cube upon t square is equal to 1 upon k. So put here value of this, f is equal to m 4 pi square upon r square, और ये जो येलो में दिख रहा है आपको r cube upon t square, इसका वैल्यू हम पुट करेंगे 1 upon k. Let's put 1 upon k. By putting you got this f is equal to m 4 pi square upon k square. अब यहाँ पे देखो m is the mass of the earth, कांस्टेंट होगा, 4 ये नंबर है, कांस्टेंट है, पाई तो आपको मालूम है, पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14 या 22.7, और के तो कांस्टेंट ही है। तो ये जो पूरा दिख रहा है, देखो यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ये पार्ट्स पूरा क्या बनेगा, देखो कांस्टेंट बनेगा पूरा, ये पार्ट क्या होगा, कांस्टेंट बनेगा, और ये जब कांस्टेंट बनेगा तो f इज इक्वल टू क्या होगा, k अपॉन r स्क्वायर, दैट इज f इज यहाँ पे कांस्टेंट है तो 1 अपॉन r स्क्वायर, प्रोपोर्शन में साइन में आएगा, मींस f इज इक्वल टू क्या हो सकता है यहाँ पे, f इज इक्वल टू f इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन क्या आ सकता है, r स्क्वायर, क्या आएगा 1 अपॉन r स्क्वायर। ओके, ऐसा आ सकता है, राइट ना? सी बट m 4 pi square upon k square भी क्या लिखा, कांस्टेंट लिखा, f is equal to constant into r, constant into 1 upon r square, that is f is directly proportional to, sorry, f is inversely proportional to r squared. R means what is the distance of the object from the center. Okay, distance of the object from the center, यहाँ पे आ गया, मीन्स यहाँ पे अप्रूव हो गया, means force of attraction, centripetal force is directly proportional, inversely proportional to square of the distance. means distance जितना increase होगा उतना force क्या होने वाला है, decrease. जो न्यूटन ने वहां पे एक्सप्लेन किया था न्यूटन इनवर्स लॉ में, वैसे यहाँ पे भी क्या हो रहा है, f is inversely proportional to what is r square. Note down your notebook yours, this is important magnitude of the centripetal force, and force is इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये प्रूव करने के लिए आपको बोलेंगे तो आपको ये एक्सप्रेशन लिखना है वहां पे, जिसके पहले आपको m का मीन लिखना है, v मीन्स r मीन्स f, v, r क्या है, t क्या है, ये सब आपको पहले ऊपर लिखना पड़ेगा। The magnitude here, centripetal force, here do we complete the activity here, means by filling the blanks, you can write here
ऐसा भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। ओके, एक्टिविटी क्वेश्चन है तो आपको ये जरूर आना चाहिए। तो वहाँ पे फिलअप से दिया है, डॉटेड लाइन से यहाँ पे आप तो कंप्लीट कर सकते हो। ओके, देखो कांस्टेंट यहाँ पे एफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। Who is this? Do you know Elon Musk? What name? Elon Musk. Tesla first completely complete automatic car. He made the first automatic car made by this Elon Musk from the Tesla. This person space attempt 1, attempt 2 fail, attempt 3rd fail. He made attempt looker and 4th attempt he was pass. ट्राइड यानी कि आपको कोई भी हर एक फेल्यूर आपको कुछ ना कुछ सिखाता है, हर एक स्टेप आपको कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं। हर एक स्टेप में फेल हो गए तो भी आपको कुछ हार मानने की नहीं है। बहुत सारे साइंटिस्ट 9,999 टाइम्स हार जाते हैं लेकिन 1000 टाइम्स में जीत जाते हैं। ले अपनी जो आशा है, अपना जो टारगेट है वो भी छोड़ते नहीं है, उसका पीछा छोड़ते नहीं है। जब तक वो हासिल नहीं करे तब तक उसको फॉलो करते रहते हैं। तो आपको भी यहाँ पे हार मानने की जरूरत नहीं है, आपको अपना स्टडीज अपना टारगेट पूरा करना है। चाहे फर्स्ट टेस्ट हो, सेकंड टेस्ट हो, थर्ड टेस्ट हो, यहाँ पे मार्क्स कम आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं, एक ना एक दिन अच्छा ऐसा आएगा कि आप वहाँ पे अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हो। ओके, सो गाइस ऑल ऑफ यू do hard work, do study there. This is the time of the corona, is the best time to you to the self study. आपको सोचना है कि एक पॉजिटिव सोच लेनी है कि मेरे पास अभी बहुत सारा 24 आवर्स मुझे क्या मिल रहा है, घर पे स्टडी करने के लिए मिल रहे हैं। ऐसा मत सोचिए कि कोरोना आ गया हमारे स्टडीज में डिस्टर्ब कर दिया, स्कूल नहीं हो रहा है, क्लासेस नहीं हो रहा है। ये सोचो कि पॉजिटिव कि मुझे घर पे बैठ के पूरी स्टडीज मिल रही है और मैं उसका पूरा का पूरा बेनिफिट लूंगा, ऐसा आपको सोचना है, राइट? सो just 1 minute here, error arises. आपको यहाँ पे एक सीख लेना है कि जो भी कुछ आप देख रहे हो यहाँ पे, जो भी कुछ आप यहाँ पे पढ़ो, न्यूटन्स लॉ हो, केपलर्स लॉ हो, तो आपकी स्टडीज कंटिन्यू होनी चाहिए। यहाँ पे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए आपका। स्टडीज करते रहो, स्टडीज इंपॉर्टेंट है। Let me open the PPT here. Sometimes these videos are in PPT, so problem arises, error occurs there. I added the videos and to upload this it take the times. Because of this you will get the disturbance, so don't worry, it will be continue in a very few seconds. Is started. Okay, all of you pay attention here. आपको स्टडीज आपकी चालू रखनी है। See here, let's open to me the screen. Okay, it is now started. See here,
velocity is less. Velocity objects, when object is on the rest position, the velocity is very less. When the object at the height, suppose reach at the heights and falling down, when you throwing the object upward direction, that time velocity start what is decrease. At initial velocity is what maximum. When reach at the maximum heights, velocity what is a 0. And when object is falling down from the heights, the velocity is what is a 0 at the height. And then when you falling down, velocity start what is increase. कभी कभी देखो आप क्रिकेट खेलते हो, तो वहां पे बॉल ऊपर से आता है, तो ऊपर से आपको हवा से वो स्लोली आता दिखता है, लेकिन जब आपके पास आता है तो एकदम फास्ट, वेरी फास्ट स्पीड से आके वो नीचे गिर जाता है. उसका स्पीड क्या होता है, हाई रहता है. तो कभी क्या उसको कैच नहीं कर पाते, या आपको हाथ को उसका स्पीड जो है, उसका जो इम्पैक्ट है, आपका हाथ को जोर से धक्का लगता है, इसका रीजन क्या है, उसका स्पीड क्या है, मोर. सो जज करना, कभी कभी हाई जो कैच होते हैं, हाई बहुत हाई जाते हैं, जैसा अपने वेस्ट इंडीज के प्लेयर बहुत हाई मारते हैं, तो वो जो कैच करना बहुत डिफिकल्ट रहता है. इसका रीजन क्या है कि वहां से बॉल ऊपर से जब आता है तो उसका स्पीड क्या होता है, बढ़ता है, आपके पास आने से और ज्यादा बढ़ता है. दैट्स व्हाई इट्स डिफिकल्ट टू कैच इट, एंड दैट्स व्हाई कभी कैच करते करते पूरा बॉडी अपना क्या होता है, पूरे नीचे झुक जाता है. इसका रीजन क्या है, उसका स्पीड. velocity is a more from the heights. velocity is a exact. ठीक है, यहाँ पे when is at reach at the height, that time is a 0, and when is falling down, the velocity what is a increase. is a infinite distance. क्या देखेंगे हम लोग, infinite. velocity is exact was infinite distance. velocity is a more, velocity less. velocity is a infinite. It's a escape velocity. That's how we are learning here is earth gravitation. देखो यहाँ पे जो अर्थ ग्रेविटेशन था, अर्थ ग्रेविटेशन के बाहर ऑब्जेक्ट है. अभी यहाँ पे फर्स्ट वाले पिक्चर में यहाँ पे देखा आपने, वेलोसिटी लेस है यहाँ पे. फर्स्ट वन देखो यहाँ पे, आई एम टेकिंग बैक टू हियर. देखो यहाँ पे ये वाला पिक्चर जो था, वहाँ पे when object is falling, velocity object is on the earth, right? Object is on the earth, that time velocity is very less. when object is goes upwards, is ये जो आपका दिख रहा है, ये अर्थ का क्या ग्रेविटेशन फील्ड है. सो ऑब्जेक्ट इज अ फॉल ऑन द अर्थ बिकॉज फोर्स attracted by the earth, this gravitation force, earth gravity pull it downwards. But when is a velocity is a more is there, velocity is more means object is goes ahead and escape its, अर्थ के अंदर आएगा नहीं. ये जो अर्थ का ग्रेविटेशन फील्ड है, इसके वो बाहर चला गया. दैट्स व्हाई अर्थ could not be pulled, not able to pull this object on the earth. This is a concept. It's a velocity. ये जो velocity उसको मिला था, यहाँ से जो ऑब्जेक्ट बाहर निकला, this velocity is called as a escape velocity. क्या बोले इसको, escape velocity. और कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसको अर्थ के राउंड में रोटेट करना है, तो उसके लिए वेलोसिटी क्या चाहिए, दिस वेलोसिटी इज अ रिक्वायर्ड वेलोसिटी इज कॉल्ड इज अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी. क्या बोलते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, यानी कि क्रिटिकल वेलोसिटी. व्हाट कॉल, क्रिटिकल वेलोसिटी. यानी कि जो मून है, मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, some of the satellite also revolving around the earth. Why they revolving around the earth? Because they got the velocity, perfect velocity, exact velocity. By this velocity they can be revolve around the earth. इससे अर्थ उसको पुल भी नहीं करेगा और अपना पाथ छोड़ के they could not be escaped from the earth gravitational field. This velocity is the exact velocity. Okay, so we are learning here this expression for the escape velocity. देखो सैटेलाइट इज लॉन्चेस. सैटेलाइट लॉन्च कहाँ से कैसे लॉन्च करते हैं, फर्स्ट दे टेक द रॉकेट, एट द टिप ऑफ द रॉकेट दे फीड द सैटेलाइट्स.
इज अ मल्टी स्टेज रॉकेट्स। मल्टी स्टेज मतलब यहाँ पे डिफरेंट फ्यूल होता है। फर्स्ट स्टेज में फर्स्ट टैंक का फ्यूल क्या होता है, बर्न होता है। इट टेक द डिजायर्ड हाइट्स, जैसा जितना हाइट चाहिए वो उतना हाइट पे पहुंचा जाता है। उसके बाद उसको क्या करते हैं, रोटेट करते हैं 90 डिग्री से। देन रॉकेट्स एस्केप टू दिस satellites and give the particular velocity. This velocity is maybe equal to the earth velocity, means और जो स्पीड से रिवॉल्व हो रहा है उसी स्पीड से वो भी ऑब्जेक्ट क्या होगा, रिवॉल्व होगा। इंडिया ने लॉन्च किया तो इंडिया को बेनिफिट मिलना चाहिए, दैट्स वाई वो इंडिया के साथ ही क्या नहीं घूमना चाहिए। ऐसा इंडिया डाउन गया तो वो सैटेलाइट भी क्या आना चाहिए, डाउन साइड आना चाहिए। दैट्स वाई दे गिव्स द एग्जैक्ट वेलोसिटी इक्वल टू द अर्थ स्पीड। अर्थ का जितना स्पीड है उतना उसको स्पीड दिया जाता है। लेट्स लर्न अबाउट द एस्केप वेलोसिटी। This is the center of the earth to the surface distance is called radius. M is the mass of the object which is lies on the earth, and the velocity of object is VESK, that is the escape velocity. Now surface of the earth, kinetic energy equal to half into mv square formula. Kinetic energy and potential energy. Kinetic energy means on account of the motion object get the velocity, object get the energy. This energy is called the kinetic energy, and on account of its position the body get the energy is called the potential energy. When you take the bow the arrow in your hands, or when you trying to the throw the balls, that time in your arms there is an energy store. This energy is called the potential energy. In a dam water store is storing water has a potential energy. When this water is start to fall, that time potential energy convert into what is a kinetic energy. Law of conservation of energy, one form of energy convert into another form. So formula according to the kinetic formula, kinetic energy formula half into mv square. यहाँ पे v क्या होगा, v escape velocity का रहेगा. So potential is m into g into h. m mass वही रहेगा, g is acceleration to gravity, and g into h. g into h यानी g का फॉर्मूला gm अपॉन r स्क्वायर, ये भी था। स्मॉल g और कैपिटल g का रिलेशन देखा हमने वहां पे, राइट। इंटू यहाँ पे h मतलब क्या हो गया, r. So put here potential energy is equal to r, and this r square will be cancelled. So you got potential energy is equal to g m into m upon r. समझ में आ रहा है क्या, पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला m into g into क्या लिखा, h. यहाँ पे g small g means acceleration due to gravity, and we learn the relation between the small g and capital G according to this formula. What is a g m upon r square. G is equal to gm upon r square, and h मतलब यहाँ पे distance of the object from the center of the earth is what is a r. So r and this r will be cancelled. You got potential energy is equal to g m into m upon r. अभी माइनस साइन क्यों आ गया, बिकॉज minus indicate that it is a potential, that is a E1 is equal to kinetic energy equal to half into mv square, और पोटेंशियल एनर्जी क्या है इसका, माइनस जी एम अपॉन आर, जी एम अपॉन आर। देखो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे पुट किया, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे पुट किया, माइनस साइन इज अ पोटेंशियल है, इज अ डायरेक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ, दैट्स व्हाई इज अ साइन इज अ नेगेटिव। When object is moving upwards, the velocity will be at the zero. देखो मैक्सिमम हाइट पे कोई भी ऑब्जेक्ट जाता है तो उसका वेलोसिटी कितना होता है, जीरो। That is a infinite distance. Distance is a infinite, मतलब बहुत दूर, from center of the earth. Then infinite distance from the earth, the kinetic energy means velocity यहाँ पे जीरो है, तो kinetic energy कितना होगा, जीरो होगा, राइट ना, क्योंकि velocity का v का वैल्यू कितना है, जीरो है। एंड पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम, वो कितना होगा, जी एम अपॉन आर। लेकिन आर यहाँ पे क्या, आर कितना है यहाँ पे, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इनफाइनाइट्स, क्या होगा, इनफाइनाइट्स। मीन्स इफ यू डिवाइड टू द एनी नंबर बाय इनफाइनाइट नंबर, इनफाइनाइट मतलब लाख करोड़ जो भी होगा, ऐसा कि ऊपर वैल्यू 2 है और नीचे हमने 2 लाख 3 लाख से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आने वाला है,
nearly equal to 0. Means kinetic energy is equal to 0, potential energy is equal to 0, that is the total energy of the body क्या मिलेगा आपको 0 मिलेगा at infinite distance, at infinite distance of the objects, and total energy of the body यहाँ पे क्या मिलेगा 0 मिलेगा, लेकिन सरफेस ऑफ द अर्थ पे ये आ रहा है, राइट, potential plus kinetic, that is a 0 plus 0 is equal to 0. So infinite distance पे क्या मिलेगा आपको 0 मिलेगा. Now according to law of conservation of energy, energy neither created nor destroyed, one form of energy converted into another form. Energy at the surface is equal to energy at the infinite distance, right? So by using this formula, E1 is equal to what is the E2, means ये जो energy दिख रही है आपकी E1, दिस कन्वर्ट ये अर्थ पे था तभी, और ये अभी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे गया, दैट टाइम एनर्जी गॉट E2, दैट इज E1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको E2. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ द E1 हियर, दिस ये वैल्यू आपको दिख रहा है यहाँ पे, देखो दिस इज द वैल्यू ऑफ द, ये जो वैल्यू है यहाँ पे दिख रहा है पूरा वैल्यू, दिस वैल्यू E1 और यहाँ पे क्या आ रहा है 0, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे इसका, E1 इज इक्वल टू, देखो पे अटेंशन हियर स्टूडेंट्स, half into mv escape square minus gm upon what is a r square, half mv escape velocity square minus gm upon r square is equal to क्या होगा 0. वैल्यू पुट किया इज इक्वल टू क्या आ गया 0. अभी यहाँ पे हमें एस्केप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालना है, तो माइनस gm अपॉन r है यहाँ पे, तो ये शायद क्या प्लस होगा, दैट इज हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू capital G m into m upon r. Now this small m and small m will be what cancel, देखो कैंसिल हो रहा है, अभी 2 डिवाइड है यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, मी v स्क्वायर इज v एस्केप स्क्वायर इज इक्वल टू 2gm अपॉन r. अभी हमें एस्केप वेलोसिटी स्क्वायर है यहाँ पे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यानी ये जो v स्क्वायर है इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, यानी v स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो गया v एस्केप, एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट square root of 2gm upon r. This is expression for the escape velocity, and bodies को escape बाहर अर्थ के ग्रेविटी से बाहर निकलना है, तो उसके लिए वेलोसिटी क्या लगेगी, कितनी लगेगी, वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम द अर्थ. आप घर पे बैठे बैठे इसको कर सकते हो, कितना वेलोसिटी चाहिए, आपके पास ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को अर्थ के बाहर भेजना है, अर्थ के ग्रेविटी के बाहर भेजना है, तो उसके लिए वेलोसिटी क्या लगेगा, व्हाट वेलोसिटी रिक्वायर्ड, दैट कैन यू कैलकुलेट फ्रॉम द होम यूर, अभी के अभी आप फाइंड कर सकते हो. लेट्स फाइंड इट्स, कितना वेलोसिटी वो निकाल सकते हैं. देखो फॉर्मूला आपके पास सामने आ गया. हाउ यू गॉट दिस फॉर्मूला, फर्स्ट वी फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑन द अर्थ सरफेस, दैट इज हाफ इनटू mv स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू, कैसा गया फॉर्मूला इज एक्सप्लेन हियर, formula by mgh, m is the mass of the object, g is the external gravity, h is the distance of it, h के बदले r लिखा, स्मॉल g का वैल्यू पुट किया, स्मॉल g का वैल्यू किया gm अपॉन r स्क्वायर, पूरा सॉल्व किया, उसका साइन क्या आ गया नेगेटिव, माइनस gm अपॉन r. नाउ काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी प्लस व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी. पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे रखा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, you got first here energy on the surface of the earth. Next, when is the object at the infinite distance, where is the object is at the infinite distance from the earth, that time kinetic energy is equal to 0. Why? Because when at the reach at the maximum height, that time velocity what is the 0, that time velocity what is the 0 there, that's why v is equal to 0. So पूरा आंसर आपको क्या मिला यहाँ पे 0. Next here, that is the potential energy is equal to minus gm upon what is the infinite, क्योंकि डिस्टेंस इसका कितना है यहाँ पे r है और बहुत दूर अर्थ के ग्रेविटी के बाहर, मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जा रहा है वो, दैट टाइम डिस्टेंस इज इनफाइनाइट. इफ यू डिवाइड न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इनफाइनाइट होगा तो उससे हम डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आने वाला है इज इक्वल टू 0, अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू व्हाट 0 मींस 0. This total energy is the sum of kinetic plus potential. 0 plus 0 is equal to 0. According to law of conservation of energy, energy at the on the earth surface that equal to energy at infinites. So E1 is equal to E2. ये रिलेशन मिला आपको, यहाँ पे E1 का वैल्यू पुट किया, यहाँ पे E2 0 है,
नाउ माइनस का साइन यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ से यम कट कैंसिल हो गया, तो डिवाइड इनटू मल्टीप्लाई एंड वी एस्केप इज इक्वल टू रूट gm अपॉन r। ऑल ऑफ यू नो g इज इक्वल टू क्या है, g इज इक्वल टू gm अपॉन r स्क्वायर, राइट ना। तो यहाँ पे देखो ये जो है फॉर्मूला यहाँ पे हमें चेंज करना है, यहाँ पे हमें g के वैल्यू पुट करना है। तो gm इज इक्वल, यहाँ पे gm दिख रहा है आपको, gm की वैल्यू क्या होगा, g इंटू आर स्क्वायर। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं करके दिखाऊं, दूसरा मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, दैट इज ये जो g दिख रहा है आपको, g इज इक्वल टू, ऐसा भी लिख सकते हैं, g इज इक्वल टू gm सॉरी g इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल क्या आएगा, gm आएगा, राइट ना। इज इक्वल ये क्या आएगा, इसका gm का वैल्यू मिलेगा। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो आर स्क्वायर आर कैंसिल होगा, राइट ना। ऊपर तो जी आर आएगा ऊपर, यानी कि एस्केप वेलोसिटी जो है वो क्या मिलेगा आपको, एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी आप कहना है इज इक्वल टू जी इंटू आर, रूट जी इंटू आर। देखो ये भी कर सकते हो, यहाँ से आर आर कैंसिल होगा, राइट ना, 2gm इंटू आर अपॉन आर, यानी एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू, यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे कि gm अपॉन आर स्क्वायर, gm अपॉन आर स्क्वायर, ये इसके बदले क्या आएगा, g आएगा, स्मॉल g, राइट ना, एंड 2gr क्या गया, रूट टू जी आर, जी नो 9.8, आर रेडियस ऑफ द अर्थ, ये दोनों वैल्यू पुट करो, आपको एस्केप वेलोसिटी मिलेगा। यहाँ पे ये फॉर्मूला आ गया, एस्केप वेलोसिटी न्यूटन लॉ ऑफ इनवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला आ गया यहाँ पे, राइट। वैसे एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट टू जी आर, रिलेशन बिटवीन द स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये भी मिला आपको। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आ गया, राइट। ये सब आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन यहीं पे मिलेगा। फुल्ली डिस्क्राइब्स, आई फुल्ली डिस्क्राइब हियर, एक्सप्लेनेशन पूरा पूरा आपको दिया है। ये हो गया आपका फॉर्मूला, वी एस के को रूट टू इंटू जी आर, वी एस के फॉर द अर्थ। अभी ये अर्थ का वैल्यू, अर्थ पे ऊपर कितना रहेगा, आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ, जी इज इक्वल टू व्हाट 9.8 मीटर पर सेकंड, आर इज रेडियस इज 6.4 इंटू 10⁶। यहाँ पे दोनों वैल्यू पुट करो, आपको आंसर मिलेगा एस्केप वेलोसिटी, बॉडी कोई भी बॉडी हो तो उसके लिए एस्केप वेलोसिटी कितना चाहिए, आपको अर्थ के बाहर जाना चाहिए, अर्थ के बाहर जाना है तो कितना वेलोसिटी आपको चाहिए, तो आप अर्थ के ग्रेविटी के बाहर जा सकते हो। आपको स्पेस में जाना है, बहुत दूर जाना है, अर्थ के वापस आने का नहीं है। इस कोरोना से आपको छुटकारा चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, ये वेलोसिटी अप्लाई कर सकते हो। ये वेलोसिटी आप खुद को दो, आप ग्रेविटेशन फील्ड के बाहर जाएंगे, जो क्या है 11.2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड, 11.2 इंटू 10⁻³ यानी कि 10⁻1000 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 11,200 11,200 मीटर पर सेकंड, दैट इज 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। 11.2 यानी कि एक सेकंड में आपका डिस्टेंस कितना, 11.2 किलोमीटर, इतना डिस्टेंस कवर कर रहे हो, इतना वेलोसिटी आपको मिला। तो मान लो आप क्या करेंगे, अर्थ का ग्रेविटी छोड़कर जा सकते हो, दैट मीन्स टू सेंड द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द अर्थ ग्रेविटी, your speed must be required here 11.2 into 10⁻³ मीटर पर सेकंड या 11.2 into 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ये चाहिए। नोट डाउन दिस, और 40,320 किलोमीटर पर आवर, इसको हम हावर में, किलोमीटर पर आवर में करेंगे तो 40,320, 1 हावर में वो कितना जाएगा, 40,320 किलोमीटर, इतना स्पीड चाहिए टू एस्केप अर्थ ग्रेविटी, अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। मुंबई टू दिल्ली ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है वो, 2 मिनट में पार कर सकते हो उसको, विद इन 2 मिनट मुंबई टू दिल्ली। इतना स्पीड लेंगे तो 40,320 किलोमीटर पर आवर लेंगे ना, तो 2 मिनट में आप मुंबई से दिल्ली पहुंच सकते हो। दिल्ली किसी को जाने का है तो ये स्पीड से जाएंगे तो आपको दिल्ली में पहुंचने के लिए 2 मिनट लगेगा।
जा सकते क्या? नहीं. नाउ टाइप सी, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी हमने देखा यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी इक्वल टू टी जी आर, एस्केप वेलोसिटी को रूट 2 into जी आर, एंड टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट अकॉर्डिंग केपलर्स लॉ, न्यूटन्स लॉ. यहाँ पे आ गया. Calculate the escape velocity on the surface of the moon given the mass and radius of the moon to be a 7.34 into 10 to 22 kilogram and 1.74 into 10 to 6 meter respectively. Radius दिया है और क्या mass दिया है. Radius and mass is a given. What is the radius and mass is a given here. Radius is a 1.74 into 10 to 6. Mass is 7.34 into 10 to 22. Then find the value of the escape velocity. अर्थ का ग्रेविटेशन, अर्थ ग्रेविटी एंड मून ग्रेविटी दोनों में क्या रिलेशन क्या है? जीएम इज इक्वल टू मींस ग्रेविटी ऑन द अर्थ इज 1/6, ग्रेविटी ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 ग्रेविटी ऑफ द अर्थ. तो एक सिंपल फॉर्मूला यहाँ पे है, ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो एंड कैन बी फाइंड आंसर. आपको अभी भी एस्केप वेलोसिटी का आंसर मिला है. एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया 9.8/6, राइट. एस्केप वेलोसिटी फॉर्मूला अप्लाई करो. एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू √2 gm अपॉन आर. क्या है? √2 gm अपॉन आर, सॉरी √2 gr. एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल √2 gr, sorry. This is the formula to find here. Apply here formula. Put the value of the moon का वैल्यू कितना? मून एक्सलेशन ग्रेविटी, मून ग्रेविटी इज इक्वल 9.8/6, राइट. इसको सॉल्व किया, कितना 9.8/6 को हम सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 1.63. वैल्यू पुट करो, सिंप्लीफाई करो, पूरा आपको आंसर मिलेगा. देखो 2 into 1.63 मल्टीप्लाई करो, इसके साथ 1.74 को मल्टीप्लाई करो, यानी 5.67 इज इसका स्क्वायर रूट निकालना है. इज अ डिफिकल्ट टू यू. इस मेथड है यहाँ पे अलग से स्क्वायर रूट निकालने का. 8th स्टैंडर्ड में आपको डिवीजन मेथड पढ़ाया था, राइट. डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालने का, कोई भी नंबर का, 10 का हो, 15 का हो, तो मेथड अप्लाई करके यहाँ पे आपको फाइंड करना है. 2.37 किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि 2.37 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड. मीटर को किलोमीटर करने के लिए यहाँ पे 10⁻³ में 1000 है, 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपको आएगा यहाँ पे 2.37 किलोमीटर पर सेकंड. एस्केप वेलोसिटी ऑन मून कितना होगा? 2.37. और अर्थ पे कितना है? देखो अर्थ पे कितना आया था? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड. यहाँ पे कितना है? 2.37. इतना कम है. मून से हम जल्दी एस्केप हो सकते हैं कम वेलोसिटी से. लेट द पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट एट डिस्टेंस r from a star bt. Prove that if it was at distance of 2r from the star, its period of revolution will be √8r, √8t. ये हमें प्रूव करना है. देखो डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज इक्वल टू r, टाइम ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू कैपिटल T. न्यू डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ पे? डबल है, 2r है, राइट. न्यू डिस्टेंस व्हाट इज द 2r है यहाँ पे. तो नेक्स्ट टू फाइंड हियर न्यू टाइम Tn. क्या फाइंड करना है? न्यू टाइम T, न्यू के लिए n लिखा. ये फॉर्मूला यहाँ पे वी एस्केप दिया है, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू के. यानी सेकंड फॉर्मूला ये आपको अप्लाई करना है, राइट. ये फॉर्मूला अप्लाई होगा नहीं, यहाँ पे टी और आर का रिलेशन दिया है तो ये कांस्टेंट है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. So t square upon r cube is equal to k, that is the t1, t is case 1. t square upon r cube is equal to k. सेकंड क्या होगा? t n r n, दोनों भी देखो 2r इज इक्वल टू के. यहाँ पे 2r, न्यू डिस्टेंस क्या है? 2r. न्यू टाइम क्या है? Tn. ये भी क्या होगा? कांस्टेंट. दोनों इक्वल दिखाओ अभी. इक्वेशन 1 और 2. यहाँ पे के है, यहाँ पे भी के है, तो इक्वल, बोथ आर द इक्वल हियर, विल बी कैंसलेशन. यहाँ पे देखो आर क्यूब कैंसिल हो गया, तो Tn स्क्वायर इज इक्वल क्या होगा? Tn स्क्वायर इज इक्वल 8t स्क्वायर. मीन्स टेकिंग स्क्वायर रूट Tn स्क्वायर का स्क्वायर रूट Tn इज इक्वल 8 का स्क्वायर रूट 2√2. कितना आएगा? √8t स्क्वायर या 2√2 या √8t. यानी अब क्या? अब आंसर देखो यहाँ पे, इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन विल बी व्हाट? √8t. आ रहा है √8t टाइम्स. वॉच इट अगेन, एक्सप्लेनेशन.
let's stop here guys to lecture because जो साइंस है यहाँ पे आपको दिख रहा टाइम 1 आवर, लेकिन एक्चुअली क्लास में पढ़ने जाएंगे तो इसको हम 2 आवर से ऊपर जा सकता है. ऑलरेडी आई मेक द पॉइंट हियर explanation to you. So all of you start your study, complete the homeworks. होमवर्क करते रहो, देते रहो मुझे फीडबैक्स.